नई दिल्ली में एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा बड़ा आयोजन हुआ। सीआई एमएसएमई द्वारा आयोजित एमएसएमई बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने एमएसएमई को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बैंकों और संस्थानों को सम्मानित किया। इसी मंच से सीआई एमएसएमई अध्यक्ष सीए मुकेश मोहन गुप्ता की पुस्तक एमएसएमईज ऑफ डेवलप्ड इंडिया का विमोचन किया गया, जिसमें सरकारी एमएसएमई योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है। मंत्री गोयल ने कहा कि मजबूत बैंकिंग सिस्टम छोटे उद्योगों की रीढ़ है और अमृतकाल में एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगा। I am recipient of 23 national awards, out of which 2 are from President of India, 2 are international, and 19 are national awards. And this will be, of course, the 24th which I received today as a MSME Ratna Award. If I have to tell you briefly, I have made, as I said, 8 inventions in my career. The second was, there was a time when Rajiv Gandhi was the Prime Minister and the villages were not connected by telecommunication. They were not. So he came forward how to connect the villages. And then ITI Mankapur, which was Indian Telephone Industry Mankapur, and my company joined hands. And we produced telephone exchanges in a bus body. If you could recollect, in those days, the telephone exchanges used to be 5-story, 7-story buildings. I am currently manufacturing. I am doing, for the say before gun, for the ammunition, we are setting up a factory which will produce propellant, which is required for the higher ammunitions. Have you suggest for MSME and output and taxes? For MSME, let me tell you, the MSME, the benefits and which are being given by the government, the awareness is very low, and MSMEs do not utilize them. I am an MSME and I am working since 1982 in India. I returned from US and my company is MSME, and of course I am I'm neither micro nor small. I'm a medium enterprise. Myself, C.A. Raj Chawla. I am the Vice President of Chamber of Indian MSME, and today our Chamber of Indian MSME is organizing the Banking Excellence Award for our MSMEs. And as we all know that as on today, more than 7 crore MSMEs are registered under Udyam portal, and MSMEs are the best producer of employment in India. And as we all know, there are many schemes under MSME, like we are discussing TRADS platform, on which platform the buyer and seller can discount their bills within 24 hours. And last year, our government of India, through Ministry of Finance, through its budget on 1st of February 24, introduced a new section 43BH. And 43BH section says that if you are buying any goods or services from any MSME, in that case you have to make the payment within 45 days. Although it is 15 days, but if you have any agreement, in that case you can make up to within 45 days. But if it is beyond 45 days, in that case you have to give the interest on the delayed payment, and also if it is outstanding in your books of account, it will not be allowed to claim as a deduction in that particular financial year. And except this, the interest rate, you will be surprised to know that the rate of interest on delayed payment is the 3 times the bank repo rate. And not only that, this interest to be calculated on monthly compounded basis. And not only that, this interest paid to MSME on delayed payment is not an allowable expenditure under Income Tax Act. So government is supporting MSME in large number, and also there is a scheme under MSME, CGT MSC scheme, through which without any collateral security, any MSME can avail loan from bank or NBFC up to 10 crore. And if you are an exporter, in that case up to 20 crore rupees loan you can avail from the banker or NBFC.
So these are the benefits given by MSME Ministry and Government of India to the MSME sector. And if you have any other question, you can ask. इंटरनेशनली जाते हैं तो 5 लाख रुपए तक की रियम्बर्समेंट दी जाती है। अगर आप MSME हैं और कोई क्लस्टर स्कीम के थ्रू जाते हैं, क्लस्टर आप लोग जानते हैं जहां एक जैसा प्रोडक्शन करने वाली यूनिट इकट्ठे मिलकर करती है, तो वहां पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों रुपया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर देती है कि आप, क्योंकि आप छोटे हैं, MSME है, आपको लेटेस्ट मशीन चाहिए, बाजार में compete करना है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसके अंदर 80% तक की सब्सिडी मशीन खरीदने के लिए MSME सेक्टर को दी जाती है। सर एक आखिरी सवाल ये है कि बजट आने वाला, बजट को लेकर आप लोगों का सरकार से क्या मांगे? सर बजट में तो आप देखेंगे कि जो मैंने अभी आपको CGT MSC स्कीम की बात बताई, 2023 तक वो 2 करोड़ रुपए था बैंक से जो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन मिलता है। उसके बाद वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2025 तक वो 5 करोड़ हुआ, और इस बार 1 अप्रैल से वो 5 की जगह 10 करोड़ और 20 करोड़ हो गया। तो सरकार तो हर साल MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 43BH इंट्रोड्यूस की। आज की डेट में अगर आप MSME से माल खरीद रहे हैं या सेवाएं ले रहे हैं तो आपको डर रहता है कि भाई इनके 45 दिन के अंदर मुझे पैसे देने हैं, नहीं तो मेरे को डिसअलाउ भी हो जाएगा और अलावा मुझे 3 गुना ब्याज देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़े बेनिफिट सरकार देने जा रही है, देती रही है, और हमें संभावना है कि इस साल के भी जो आने वाले बजट में सरकार इस चीज को सपोर्ट करेगी। सर सरकार को हम पूरे सुझाव दे रहे हैं, चाहे वो GST है, चाहे वो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में भी सरकार ने जो MSMEs ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पे करती हैं, तो उनको 10 करोड़ रुपए तक कोई भी अपना टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। जो इनकम टैक्स में ऑडिट होता है वो कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप MSME हैं और आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक है और आप अपनी 95% जो टर्नओवर है वो अगर आप बैंकिंग चैनल या डिजिटल चैनल के थ्रू करते हैं तो रोजगार, हाईएस्ट रोजगार जो है MSME सेक्टर द्वारा ही दिया जा रहा है आज की डेट में। अभी हम बात कर रहे थे कि 7.3 करोड़ जो हैं रजिस्टर्ड MSMEs हैं, और मैक्सिमम रोजगार जो है वो MSME सेक्टर द्वारा ही दिया जा रहा है। और आज की डेट में एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है। अभी इस साल के जो बजट में जो 1 फरवरी 2025 को आया था, इसमें MSME ने नई स्कीम दी है कि अगर आप MSME और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 20 करोड़ तक लोन विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी आप ले सकते हैं बैंक और NBFC कंपनी से। अच्छा, तो मेरा नाम मुकेश मोहन गुप्ता है और मैं चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में एज प्रेसिडेंट की भूमिका भी निभा रहा हूँ। आज जो ये इवेंट है, देखिए हमें ऐसा लगता है कि जो MSME है, आज उद्यम पोर्टल जो है, जो कि एकमात्र रजिस्ट्रेशन है MSME के लिए, वहाँ 7 करोड़ 32 लाख से ज़्यादा MSME रजिस्टर्ड हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 32 करोड़ से ज़्यादा लोग इस MSME के साथ जुड़े हुए हैं एज एन एम्प्लॉय। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ कि भाई 32 करोड़ लोग हैं, 4 लोगों की एक फैमिली है, तो 120 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो MSME के साथ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं MSME। यानी 140 करोड़ में से 120 करोड़ को तो MSME ने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी फैमिली इस वजह से चल रही है। तो हमें लगा कि इन MSMEs को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको अवार्ड देना चाहिए जो अच्छा कर रहे हैं, ताकि जो दूसरे MSMEs हैं वो भी उनको देखकर और आगे बढ़ने की सोचें। दूसरा, हमें लगा कि जो बैंकर्स हैं जो इन MSMEs की मदद कर रहे हैं डिफरेंट तरह के लोन देकर, उनको हमें ज़रूर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज का जो ये इवेंट है, 2 लोगों को खास तौर से हम यहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं। एक तो जो बैंकर्स हैं और जो सपोर्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे SIDBI है, NSIC है या दूसरे, और जो बैंक्स हैं, और इसके अलावा जो MSMEs हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन 2 लोगों को हम यहाँ पर आज अवार्ड देकर उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। सर 22-23 की रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, तो सन 2023-24 में 70,000 से ऑन रिकॉर्ड है कि 70,000 MSME बंद हुए हैं और उनके डिफरेंट कारण हैं। तो क्या आप उसमें सर्वाइव करते हैं? क्या उनको दोबारा आउटपुट लाने, मार्केट में लाने में किस तरीके से आप सर्वाइव करते हैं? गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी रहती है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एग्जिट की आपने बात की, और इसके लिए तो बल्कि उल्टा मैं कहूँगा कि और डिमांड है। देखिए, जब एक सरकार लेकर आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि भाई जो लोग नहीं काम कर सकते, नहीं ठीक से अगर काम कर रहे हैं, तो उनके रेजोल्यूशन के लिए यानी एग्जिट मोड उनको दिया जाना चाहिए। ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, इनका एग्जिट मोड जो है वो बड़ा डेंजरस सा होता है। मतलब अगर कोई एक प्रोप्राइटर है, उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, अब वो नहीं चल रहा, उसने कुछ लोन ले लिए,
है ना, कुछ और सप्लाई कर दी, कुछ पैसे लेने हैं, अगर वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा है तो क्या करे वो। तो इस तरह से एग्जिट मोड भी जरूर होना चाहिए। और देखिए जब ये तो एक चक्र है, तो आपने जो कहा कि इतनी यूनिट बंद हो गई, अगर बंद हो गई तो आप ये भी देखिए कि कुछ यूनिट बंद होंगी भी जरूर। यानी जो फेल्योर है, फेल्योर का अगर मैं फुल फॉर्म कहूँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है, FAIL इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फेल भी होंगे कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग सफलता दर बदर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जो 2020 में अगर कुल लगभग 1.5 करोड़ MSME रजिस्टर्ड थे, तो आज वो जो संख्या है बढ़कर 7 करोड़ 32 लाख हो गए। तो